Moving further with dimensional equation table, we had taken up to 54. Now we can go over to 55 number. That's Planck's constant denoted by chota h. Small h is the symbol for Planck's constant. Now how to obtain it? So for that we have a formula E is equal to hf, where E is the energy and F is the frequency. So getting the value of h, so h will be equal to E upon F. Now E is for energy, so dimensional formula for energy m1 L2 T minus 2 upon frequency. Frequency is m0 L0 T minus 1, inverse of periodic time. So this will come out to be m1 L2 T minus 1. यूनिट क्या हो जाएगा इसका? तो एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, जूल अपॉन फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज है, हर्ट्ज को हम लिखते हैं सेकेंड इनवर्स एंड देयरफॉर दिस विल बी जूल इनटू सेकेंड. तो यूनिट ऑफ Planck's constant is joule into second. It's a constant value defined in SI system only, no CGS unit. Value in CGS unit not to be considered. ये हो गया Planck's constant के बारे में. इसके बाद आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो हमने ऑलरेडी ले लिया पहले से 56 नंबर. चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्योंकि ये रेगुलरली पूछा जाता है एग्जाम में. ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला G इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. देयरफॉर G विल बी इक्वल टू, G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इससे ऑब्टेन करना है तो G इक्वल टू F इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 m2. डायमेंशनल इक्वेशन बनेगा फोर्स का m1 L1 T माइनस 2, डिस्टेंस का m0 L1 T0 का स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर है इसलिए, अपॉन मास इंटू मास, मास का m1 L0 T0 का स्क्वायर. So this will come out to be m1 and ये 2 है तो 1 minus 2, यहाँ तो 0 है तो this will be m minus 1. L के लिए आएगा 1, फिर प्लस 2, यहाँ 0 है तो 3 हो गया. T raised to minus 2, तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. एंड इसका यूनिट क्या बनेगा? तो फोर्स का न्यूटन इंटू डिस्टेंस स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन मास स्क्वायर kg square. CGS counterpart will be dyne into centimeter square upon gram square. So that's the dimensional formula for gravitational constant. Okay. So now going further, 57 number is electric current. Its symbol is I. It's a fundamental quantity in SI system. So its dimensional equation take it as m0 L0 T0. एम्पियर यूनिट है इसलिए A1 लिखेंगे. Other than writing I, we use A for ampere. ऐसा यूनिट है एम्पियर, CGS यूनिट नॉट अवेलेबल. ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट के लिए. As it's a fundamental quantity, only one will be present, other all will be absent. Further, 58 is electric charge. Electric charge denoted by capital Q. So capital Q is used for heat energy also and charge also. Many times small q is also used. So capital Q or small q can be used for the symbol. And it is given as I into T, current into time. So the dimensional equation will be m0 L0 T1 for time, A1 for ampere. Okay, so T1 A1 is dimensional equation for electric charge. And unit will be current ka ampere into time ka second. This is called coulomb. Coulomb is a unit of electric charge. SI unit, CGS unit not defined. After electric charge, we take electric potential. Electric potential, or we can take potential difference. Now, potential difference of electric potential is given as V, and that is given as work done per unit charge. Work done per unit charge, that is electric potential. Now work done का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L2 T minus 2. चार्ज के लिए भी है m0 L0 T1 A1. So this will work out to be m1 L2 T minus 3 A minus 1. That's the dimensional formula for electric potential. And its unit work done per unit charge. Work done का जूल,
चार्ज का कूलम, जूल पर कूलम इज लविंगली कॉल्ड वोल्ट. So potential difference is also called as voltage, right? Then comes 60 number, that is resistance, denoted by capital R. Now by Ohm's law we have V, R is equal to V upon I, ratio of voltage and current. ये potential difference and current gives resistance. Potential difference का dimension formula M1 L2 T minus 3 A minus 1 upon current का dimensional formula M0 L0 T0 A1, and the ratio comes out to be only change in A, that is M1 L2 T minus 3 A minus 2. Okay, so that's the dimensional formula for resistance. Unit क्या आएगा? तो V potential difference का volt, current का ampere, so it is volt upon ampere, जिसे प्यार से हम लोग ओम कहते हैं, OHM. Okay, so that's the dimensional formula for resistance and unit of resistance. In सब में SI CJ unit is not defined. Then comes 61, resistivity. Resistivity is defined as, it is denoted by rho and it is given as R into A by L, where R is the resistance, A is the area, L is the length. तो एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, कैंसिल हो गया, एक मीटर ही बचा. डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए तो M1 L2 T minus 3 A minus 2, ये हो गया रेजिस्टेंस का. एरिया के लिए M0 L2 T0 and for length it will be M0 L1 T0. So रिजल्ट क्या आएगा इसका? L1 L2, तो एक L बचा, वो यहाँ एड अप हो जाएगा, तो दिस विल बी M1 L3 T minus 3 A minus 2. दैट्स डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी. यूनिट देखे तो क्या बनेगा? रेजिस्टेंस का ओम इंटू एरिया का मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ का मीटर, सो दिस कम्स आउट टू बी ओम इंटू मीटर. एंड ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट नॉट डिफाइंड, तो हो गया रेजिस्टिविटी के लिए. So you'll find that in the table there are quantities up to 61 only, that is the resistivity. But I am extending the table. Say in the table there are no much spaces available, no problem. You are right now writing in your notebooks, so therefore you can add the rows. Okay, certain extra we are doing it. What is happening is, from electric current, the quantities which we took are there in 12th standard. It's not in 11th standard. Up to electric current it was fine, all was in 11th standard, but beyond electric current all the quantities will be available in 12th standard. तो फिर आप बोलोगे अभी क्यों पढ़ना है? The reason is that in certain school exams, first term exams, these quantities from 12th standard appear. At that time if you are not done, then you will be caught red-handed. So it is better to do it as a practice. Okay, तो चलते हैं आगे. Next comes conductance. Conductance यानी क्या? तो इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का इनवर्स है. तो ऑब्वियसली डायमेंशनल इक्वेशन भी क्या हो जाएगा? इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस. 1 अपॉन रेजिस्टेंस का डायमेंशनल इक्वेशन क्या था? M1 L2 T minus 3 A minus 2, दैट वाज ऑफ रेजिस्टेंस. तो इसका इनवर्स कर दिया, तो व्हाट वी गेट इज M minus 1 L minus 2 T3 A2. दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कंडक्टेंस. इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस. तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी इनवर्स हो गया, तो यूनिट भी इसका इनवर्स हो जाएगा. 1 अपॉन ओम है, तो ये बन जाएगा ओम का सिंबल उल्टा. ये 1 अपॉन OHM है, तो इसको लिखेंगे MHO, मो. दैट इज द सिंबल फॉर कंडक्टेंस. नाउ ऐसा यूनिट हैज एक्सेप्टेड सीमेन, कैपिटल S, एज अ सिंबल फॉर, एज अ यूनिट फॉर कंडक्टेंस. ऐसे सिस्टम ने भी इसको एक्सेप्ट किया हुआ है साइमन को, और ये भी हम यूज कर सकते हैं, बराबर है. सो दैट इज कंडक्टेंस. नेक्स्ट कम्स इज कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी. नाउ
Conductance is inverse of resistance, so conductivity is inverse of resistivity. It is denoted by sigma. Sigma is the notation for conductivity. It is inverse of resistivity. तो जो resistivity का था उसको उल्टा, resistivity का याद करें तो it was m1 l3 t minus 3 a minus 2. इसका इनवर्स करेंगे तो m minus 1 l minus 3 t 3 a 2. ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। यूनिट भी इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी रहेगा तो 1/ओम इंटू मीटर, दैट इज मो पर मीटर, या फिर साइमन इंटू मीटर इनवर्स। मो की जगह साइमन लिखा, मीटर इनवर्स। ये यूनिट हो गया कंडक्टिविटी का। इन सब के सीजीएस यूनिट नॉट डिफाइंड। देन कम 64 एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। Electric field is denoted by capital E and it is force per unit charge. It is force upon charge. Force is m1 l1 t minus 2 and charge is given as m0 l0 t1 a1. So this ratio comes out to be m1 l1 t minus 3 a minus 1. Okay, so that's for electric field intensity. Now यूनिट क्या आएगा इसका, फोर्स अपॉन चार्ज, सो न्यूटन पर कूलम। सीजीएस यूनिट नॉट डिफाइंड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। 65 वी टेक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय 5 एंड नीचे सफिक्स में ई लिखने का फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड दैट इज ई इंटू ए, where E is the electric field intensity into area. So electric field intensity here m1 l1 t minus 3 a minus 1 multiply with the area m0 l2 t0, and that comes out to be m1 l3 t minus 3 a minus 1. एंड इसका यूनिट क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। सीजीएस यूनिट नॉट डिफाइंड। ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। सो नेक्स्ट वी गो ओवर फॉर कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस C is given as Q upon V, where Q is the charge and V is the potential difference. Now charge के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, m0 l0 t1 a1, that's for charge, and for potential difference we have m1 l2 t minus 3 a minus 1. सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, m रेज टू माइनस 1 l रेज टू माइनस 2 t रेज टू 4 एंड a रेज टू 2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा। ओके, सो द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस कम्स आउट टू बी m minus 1 l minus 2 t4 a2. इसका ऐसा यूनिट कूलम अपॉन वोल्ट, चार्ज का कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, एंड दैट्स कॉल्ड फैरेड, FARAD। फैरेडे का आधा नाम है फैरेड, कैपिटल F इज द सिंबल। सीजीएस यूनिट नॉट डिफाइंड। आफ्टर कैपेसिटेंस वी विल टेक इंडक्टेंस। 67 इंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय L। ऐसा जिसका फॉर्मूला हम लोग नहीं ले रहे हैं, पर इसके यूनिट में ओम इंटू सेकेंड है। ओम यानी रेजिस्टेंस, कैन बी टेकन एज रेजिस्टेंस इंटू टाइम। ये एक्चुअली इसका फॉर्मूला नहीं है, पर रेजिस्टेंस इंटू टाइम ले सकते हैं इसको। तो ओम रेजिस्टेंस का जो हमारे पास है डायमेंशनल इक्वेशन m1 l2 t minus 3 a minus 2, दैट फॉर रेजिस्टेंस, इंटू टाइम m0 l0 t1, so that comes out to be m1 l2 t minus 2 a minus 2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया इंडक्टेंस का। अब इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l2 t minus 2 a minus 2, उसका यूनिट क्या आ जाएगा, ओम इंटू सेकेंड, जिसको प्यार से हम लोग H हेनरी कहते हैं। सीजीएस यूनिट नॉट डिफाइंड। इंडक्टेंस के बाद हम लोग ले रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स।
आगे जो लिया था वो क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, यहाँ पे ले रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, magnetic flux denoted by phi and m for magnetic, and that is given as L into I, where L is the self inductance and I is the current. L is this inductance and I is the current. तो L का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L2 t minus 2 a minus 2 into करंट के लिए m0 L0 t0 a1. So result will come out to be m1 L2 t minus 2 a minus 1. ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का. यूनिट क्या बनेगा इसका, तो फ्लक्स का हेनरी इंटू करंट का एम्पियर, सॉरी इंडक्टेंस का हेनरी इंटू एम्पियर, एंड दैट्स कॉल्ड WB, वेबर, एज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. CGS unit not defined. Then we take another 69, that's magnetic field intensity. Magnetic field intensity is denoted by capital B, and it is magnetic flux per unit area. It's magnetic flux per unit area. Magnetic flux क्या है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला देखो तो m1 L2 t minus 2 a minus 1 upon area is m0 L2 t0, एंड इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, m1 L0 t minus 2 a minus 1. दैट्स द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. एंड इसका यूनिट क्या आएगा, तो फ्लक्स का वेबर अपॉन एरिया का मीटर स्क्वायर, एंड जिसको प्यार से टी बोलते हैं, एंड दैट्स टेस्ला. CGS यूनिट नॉट डिफाइंड. ओके, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एरिया. द लिस्ट इज एंडलेस बट वी आर नॉट गोइंग बियॉन्ड दिस. यहाँ पे हम लोग अपना काम रोकते हैं टेबल का. मैंने आपको पहले भी बताया था, टेबल की सारी क्वांटिटीज को याद रखना कंपलसरी नहीं है. डू नॉट ट्राई टू मग अप द ऑल द डायमेंशनल फॉर्मूला. पहले 14-15 तक फाइन, फिर बाद में फॉर्मूला के बेस पर से हाउ टू गेट द डायमेंशनल फॉर्मूला दैट यू हैव टू लर्न. इसे ये पूरा टेबल जो हमने बनाया, आपने अभी तो नोटबुक में लिखा ही है, साथ साथ में लिखा है, बी स्लाइटली रफ सॉर्ट ऑफ थिंग. I would like you to take a pin page and start writing this all again. Practice it once again. Okay? Complete list. After doing such a lengthy table of dimensional formula, you will be wondering why we are doing so much dimensional formula. What is its use? So let's see further. Here we study the method called dimension analysis. What is this method called dimension analysis? It's a method of solving problems in physics. This dimension analysis is a method of solving problems in physics using dimensional formula. Dimensional formula का use करके how to solve the problems in physics. That's what is called. That method is called dimension analysis. It's an approach of solving the problems in physics using dimensional formula. It has two main uses. पहला use, to check dimensional validity of given physical equation. You will be given a physical equation, an equation involving physical quantities. Let's suppose, for example, k is equal to half mv square. A popular formula for us. That kinetic energy is half mass into velocity square. ये एक popular formula है हमारे पास. ये check करना है whether this equation is dimensionally valid or not. ये इक्वेशन वैलिड है नहीं वो चेक करना है. दैट कैन बी डन यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस. व्हाट वी डू इन दिस अप्रोच इज, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल इक्वेशन ढूंढते हैं, राइट हैंड साइड का इफेक्टिव डायमेंशनल इक्वेशन ढूंढते हैं. दोनों अगर सेम है तो डायमेंशनली वैलिड, दोनों अगर सेम नहीं हो तो इट इज इनवैलिड. ओके, इफ डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ LHS and RHS comes out to be same, then equation is it's valid, otherwise it is invalid. Okay, अब यहाँ पे हम लोग जो चेक करते हैं डायमेंशनल वैलिडिटी चेक करते हैं. वी जस्ट चेक द इक्वेशन वेदर इट इज वैलिड और नॉट, करेक्ट और इनकरेक्ट, यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला. बेस्ड ऑन डायमेंशनल फॉर्मूला वी आर टेकिंग. अगर ये फॉर्मूला यूं लिखे k इक्वल टू mv स्क्वायर, बराबर है, तो भी ये वैलिड आएगा. पर इज इट द करेक्ट इक्वेशन? नहीं, वी आर नॉट चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, वी आर जस्ट चेकिंग डायमेंशनली इट इज वैलिड और नॉट. इसकी वैलिडिटी डायमेंशनली चेक करते हैं
एक्चुअल करेक्टनेस नहीं, ये दोनों इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड आएंगे, पर कौन सा सही है, हाफ mv स्क्वायर, नॉट दिस वन, क्योंकि हाफ इज अ प्योर नंबर, नो डायमेंशनल इक्वेशन, तो डज नॉट मेक एन इफेक्ट, तो ये दोनों डायमेंशनली वैलिड आएंगे, बट इट डजंट मीन कि इक्वेशन सही है. रिमेंबर वेल, इक्वेशन कैन बी डायमेंशनली वैलिड येट इट मे बी इनकरेक्ट. बराबर, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ लिमिटेशन हमारा कि हम लोग जस्ट चेक करेंगे डायमेंशनल वैलिडिटी, नॉट एक्चुअल वैलिडिटी ऑफ द इक्वेशन. बराबर है, ये एक अप्रोच, एक यूज हो गया इसका. दूसरा यूज, टू ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, यानी किसी एक क्वांटिटी का फॉर्मूला लाना है इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज. जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिया है, यहाँ पे इन फर्स्ट यूज द इक्वेशन इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू चेक वेदर इट इज वैलिड और नॉट. सेकेंड यूज में क्या करेंगे, ऑब्टेनिंग द फॉर्मूला फॉर के इन टर्म्स ऑफ एम एंड वी, यानी ये फॉर्मूला ऑब्टेन करने का, दैट्स द सेकेंड यूज. क्लियर. सो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज हम लोग क्या करते हैं, एक तो वेदर द इक्वेशन इज वैलिड और नॉट, डायमेंशनल वैलिडिटी चेक करते हैं. दूसरा, वी ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर अ गिवन क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज. आवर नेक्स्ट lecture will be based on these both the uses. Two separate lectures will be there, one for first use, another for second use.